इन दिनों में एक बहुत अहम उन्वान जिस पर हम कलाम करेंगे वो है ईमानदार की जिंदगी में रूहुल कुद्स के फल। ये इतना अहम है कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक पेंटिकास्टल तहरीक उसके तेज बहाव में कमी आ जाने की बुनियादी वजह कि हमने रूहुल कुद्स के फलों को या तो नजरअंदाज किया या हमने कम तवज्जो दी या इसकी खैर ना की। रूहुल कुद्स की नेमतों पर हमने ज्यादा जोर दिया और बैलेंस कायम ना रखा। शायद रूहुल कुद्स की नेमतें चूंकि उनमें बड़ा खड़का वड़का होता है, खादिम को तवज्जो मिलती है, लोग वाह वाह कहते हैं, शोहरत मिलती है, इसलिए रूहुल कुद्स की नेमतों ने हमें ज्यादा अट्रैक्ट किया। लेकिन भूल गए कि पाक रूह की नेमतों की बुनियाद पाक रूह का फल है। दरअसल नेमतें भी फल ही है, क्योंकि उसमें भी खुदा की मोहब्बत का इजहार है। रूहुल कुद्स की नेमतें, जिसको नेमतों के लिए ग्रीक लफ्ज खारिस माटा, खारिस मीन्स फजल, माठा इजहार। पाक रूह की नेमतें क्या हैं? खुदावंद के फजल का इजहार, यानी उसकी गैर मशरूत मोहब्बत जिसके हम मुस्तहिक नहीं, उनका जाहिर होना। तो वो भी रूहुल कुद्स की नेमतें भी और रूहुल कुद्स के फल भी एक ही सोते से बहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हमारे कैरेक्टर्स इनमें पाक रूह के फल होंगे तो रूहुल कुद्स की नेमतें जोर से काम करेंगी और पेंटिकास्टल तहरीक और भी आगे जाएगी। तो आइए आज देखें यूहन्ना की इंजील 15वां बाब, एक एक लफ्ज पर आइए हम गौर करते हैं। पहली आयत से पढ़ूंगा। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, यानी पॉसिबिलिटी है कि डाली मसीह में भी हो और फिर भी बेफल रहे। इट्स क्वाइट पॉसिबल। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है। इंग्लिश में लफ्ज है प्रूनिंग, यानी काटना छांटना। काफी तकलीफ दे अमल है। वो जायद मटीरियल जो डाली के इर्द गिर्द है, जो फल आने से रोकता है डाली को, उसको वो काट देता है। मकसद क्या है? सख्ती नहीं, ताकि वो ज्यादा फल लाए। बागबान की दिलचस्पी फल लाने में और ज्यादा फल लाने में। हर वो चीज जो डाली को फल लाने से रोकती है, उसे वो प्रूनिंग करता है, काट डालता है, ताकि सारा सैप जो है, जिंदगी जो है, वो कंसंट्रेट हो और ईमानदार में ज्यादा फल लगे। तीसरी आयत,
اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. یہ پروننگ ہے. کلام کی قدرت سے ہمیں پاک کرتے رہنا تاکہ زیادہ پھل لگے. چوتھی آیت, تم مجھ میں قائم رہو میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی, اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. میں انگور کا درخت ہوں, تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے. کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا, اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. یعنی تمہاری پریئر لائف بھی ایفیکٹو ہو جائے گی. پھلوں کا تعلق ہماری پریئر لائف سے بھی ہے. ہم بعض اوقات آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ پریئر کے حوالے نکال کر ان کو کوٹ کرتے ہیں, لیکن کانٹیکسٹ ہے, سیاق و سباق ہے, اور وہ مسیح میں قائم رہنا ہے, بہت پھل لانا ہے, پھلدار زندگی, مسیح میں قائم زندگی. جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا. آٹھویں آیت, میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. دیکھو کتنی اہم باتیں ہیں. باپ کا جلال ہر دعا میں ہم کہتے ہیں اے خداوند تیرا جلال ظاہر ہو. باپ کا جلال ظاہر ہوتا ہے جب اس کے لوگ, ان کی زندگیاں اور ان کی خدمت پھلدار ہوگی اور کثرت سے پھل لائے گی. جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. شاگرد کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ بہت سا پھل لائے. اور پھر ہم پڑھتے ہیں 9ویں آیت میں, جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے بھی محبت رکھی. تم میری محبت میں قائم رہو. اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے. آگے قائم رہنے کا طریقہ بھی ہے. بھی قائم کیسے رہنا ہے؟ میری تعلیم پر, میرے کلام پر, میرے حکموں پر عمل کرو. ایکشن, تابعداری. اس طرح تم مجھ میں قائم رہو گے, میری محبت میں قائم رہو گے, جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں. میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو. خوشی بھی ایماندار میں روح کے پھلوں کے کانٹیکسٹ میں ہی ہے. دعائیں بھی پھلوں کے سیاق و سباق میں ہیں, قائم رہنے میں ہے, تابعداری میں رہنے میں ہے. یہ اصل کرسچن لائف اور یہ اصل خدمت کی اسپرٹ ہے. بڑا کر لیا ہم نے زور شور میں, ہم نے سمجھا شاید دس از دی اسپرچوئل لائف. لیکن پھل جتنی اونچی بولتے ہیں کوئی والیوم انسانی زبان بول نہیں سکتی ہے. پھل اشتہار ہیں, پھل خود ثبوت ہیں, پھل خود گواہی دیتے ہیں.
اور पेंटिकॉस्टल मूवमेंट को इस तरफ आना होगा कि हमारी जिंदगी स्पीक्स लाउडर देन आवर वॉइस। मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। 12वीं आयत, मेरा हुक्म ये है। अब हुक्म आ गया कि हुक्म है क्या? हुक्म यह है कि जैसे क्वालिटी, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। दैट्स इट। इससे ज्यादा मोहब्बत अब मसीह अपनी मोहब्बत का म्यार बता रहा है। हाउ आई लव्ड यू। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। यह असल पोजीशन है और प्रेस्टीज है। फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह के दोस्त। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने, जोर से बोलिए, दोस्त कहा है। इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी, सीक्रेट्स भी बता दिए। दैट्स अ नेचर ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंड सब कुछ जानते हैं। 16वीं आयत, तुमने मुझे नहीं चुना। इनिशिएटिव इज नॉट फ्रॉम अस। मैंने तुम्हें चुन लिया, मैंने तुमको मुकर्रर किया। मकसद क्या है कि जा कर फल लाओ। दैट्स इट। और ना सिर्फ यही, तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि आगे फिर दुआ आ गई, फिर रेफरेंस है, फिर कॉन्टेक्स्ट है कि दुआएं कब मुयस्सर होती हैं? जब हम फल लाते हैं, फल कायम रहते हैं, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। तो मेरे अजीजों, इसमें मुझे पहली बात तो ये नजर आ रही है कि मसीह क्या बातें, क्या पिक्चर उसने इस्तेमाल की हमारा और उसका रिश्ता बयान करने के लिए, वजाहत करने के लिए। उसने कहा, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम मेरी डालियां हो। ना डालियों के बगैर दरख्त है और ना दरख्त के बगैर डालियां हैं। यह लाज़िम मलज़ूम है। इसका फिर मतलब यह निकला कि मसीह शागिर्द की पहचान है और शागिर्द मसीह की पहचान है। मसीह और हम एक दूसरे की पहचान हैं। और यह बहुत बड़ा शर्फ है एक उस शख्स के लिए जो मसीह का कहलाता है। यह उसकी इज्जत है, यह उसका अजाज, उसके लिए ऑनर और बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि मेरी आइडेंटिटी में मसीह है। मसीह अपनी पहचान हमारे वसीले से करता है। और क्रिश्चियन लाइफ में फल लाना ही रियल इशू है। दैट्स इट। असल मामला फल लाना है। और ये फल लाने की बात, ये शुरू ही से हम देखते हैं, ये बाप का इंटरेस्ट है। उसने कायनात खलक की, इंसान खलक किया। पैदाइश की किताब पहला बाब। और इंसान को पैदा करने के बाद ही ब्लेस्ड देम, उसने बरकत दी आदम को, हवा को। और बरकत क्या दी? उनको बरकत दी और कहा कि फलो। दैट्स द फर्स्ट ब्लेसिंग। बी फ्रूटफुल और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो।
ये ब्लेसिंग्स है कि बी फ्रूटफुल एंड इंक्रीज इन नंबर। इसका मतलब है हम में फल लाने की सलाहियत मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है। खुदा ने हमें बरकत दी है, फल लाओ। और आखिर में भी हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, मुखाशफा की किताब 22 बाब अगर देखें हैरान होंगे कि खुदा का कलाम एंड भी इसी बात पर और शुरू भी इसी बात पर। मुखाशफा 22 बाब, फिर उसने मुझे बिलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रे के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे। अगेन द फ्रूट, और दरिया है रूहुल कुद्स की तशबीह है, और वो हर महीने में फलता है। अगेन इट ब्रिंग्स फ्रूट एवरी मंथ। उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी, और फिर लानत ना होगी, नो मोर कर्स। आगे बातें हैं, खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा, उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। व्हाट अ ब्लेसिंग। तो बाइबल मुकद्दस शुरू में भी हमें फलों के बारे में बताती है, और आखिर में भी हमें फलों के बारे बताती है, और फलों में शिफा होगी। फलों से बीमार दुनिया को शिफा मिलेगी, उसके पत्तों से वो मुरझाएंगे नहीं। हिजकिय्याह की किताब में भी यही लिखा हुआ है। आइए देखें उस हवाले को भी। हिजकिय्याह 47वां बाब, इसमें भी दरिया का जिक्र है, और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूं कि दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। तब उसने मुझे फरमाया कि यह पानी मशरकी इलाके की तरफ बहता है, और आगे है कि जहां जहां जाता है चीज़ों को शीरीं करता है, जिंदगी बख्शता है, मछलियां बख्शता है, कसरत से बख्शता है। लेकिन कीच और दलदल की जगह, ये वो जिंदगियां हैं जो कभी शीरी नहीं होंगी, चाहे रूहुल कुद्स कसरत से दरिया की तरह यही बहना शुरू कर दे। लेकिन जो कीचड़ की जिंदगियां, दलदल की जिंदगियां हैं, रिफ्यूज टू सबमिट टू द मूव ऑफ द होली स्पिरिट, वो बेफल रहेंगी। लेकिन क्या होगा? 12वीं आयत, और दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त, यानी फ्रूटफुल ट्रीज उगेंगे, जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे, नो विदरिंग, जिनके मेवे यानी फ्रूट कभी मौकूफ ना होंगे, वो हर महीने नए मेवे लाएंगे, क्योंकि उनका पानी मकदस में से जारी है, और उनके मेवे यानी फल खाने के लिए, और उनके पत्ते दवा के लिए होंगे। मेडिसिन लफ्ज लिखा हुआ है। फ्रूट इज अ मेडिसिन, दुनिया के लिए भी, बीमार दुनिया के लिए भी, बीमार चर्चेस के लिए भी, और आपके अपने लिए भी। जो फल हैं हमें भी सेटिस्फाई करेंगे, दुनिया को भी हील करेंगे, और फल मसीह की पहचान और फल शागिर्द की पहचान है। इसलिए मेरे अजीजों, इस तरफ हम राग़िब हों और अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि मेरी जिंदगी फलों से भरी हुई है। और फिर हमने यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में भी पढ़ा कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। दैट्स द थर्ड थिंग। और किसी चीज से बाप का जलाल इतना जाहिर नहीं होता जितना फ्रूटफुल जिंदगी से बाप का जलाल जाहिर होता है। और फिर हमने पढ़ी एक और बात भी, चौथा पॉइंट,
फल ही शागिर्द की निशानी है। मत्ती की इंजील 7वें बाब में मसीह ने तालीम दी कि लोग तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आएंगे, लेकिन अंदर से भेड़िए होंगे, फाड़ने वाले। तुम कैसे इनको पहचानोगे? उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, उनकी नेमतों से नहीं, उनकी खूबसूरत तालीम से नहीं, जोर शोर से नहीं, जोश जाश से नहीं, उनके फलों से। यह पहचान है, तुम उनको पहचान लोगे। और फिर 5th पॉइंट हमने पढ़ा यूहन्ना की इंजील में कि हमारे मुकर्रर किए जाने का मकसद ही यही है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। तो आइए वाइंड अप करें कि पहली बात, रूह का फल या फलदार जिंदगी, ये रूहुल कुद्स से भरे हुए शख्स का सुपर नेचुरल नतीजा है। आप पाक रूह से भरी हुई जिंदगी गुजारें, फल खुद लग जाएंगे। फल लगाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, फल आने के लिए दरख्त का कायम रहना जरूरी है। फल वो खुद लाता है, फल मसीह की वजह से आता है, मसीह में रहने की वजह से आता है। रूह से भरे रहने, रूह में चलने, रूह में बोलने, रूह में कलाम देने, रूह में फैसले करने, रूह का मिजाज रखने की वजह से, उसके असर से जिंदगी में फल लग जाते हैं। ये सुपर नेचुरल फल हैं। शायद कल हम इन पर गौर करेंगे। ये नेचुरल फल नहीं हैं। हमारी नेचुरल जिंदगी, इसमें भी फल होते हैं। गैर निजात याफ्ता आदमी भी इखलाकी तौर पर अच्छा बोलता है, मेहरबानी भी करता है, खरायत भी देता है, वो भी बहुत कुछ कर लेता है, बाज़ औक़ात ईमानदारों से बेहतर। लेकिन वो नेचुरल फल है। ईमानदार की जिंदगी में सुपर नेचुरल खुदा की जिंदगी, रूहुल कुद्स के बहाव और मामूरी के साथ जो फल आता है, वो नेचुरल फलों से कहीं ज्यादा, कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा टेस्टी, कहीं ज्यादा पुरकशिश होता है। और काश हमारी जिंदगियां ऐसे फलों से लदी हुई हों। फल खुद गवाही देगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि फल ही इस बात का सबूत है, जिंदा सबूत है। किस बात का? कि खुदा हमारे दरमियान रहता है। इट्स द फ्रूट, नॉट द गिफ्ट्स। सबूत हैं, जिंदा खुदा इनमें रहता है और रूहुल कुद्स हम में बसा हुआ है और हम रूहुल कुद्स में चल रहे हैं। हमने समझा पेंटिकॉस्टल सर्कल्स में, और ठीक भी समझा, हमारा आज भी यही ईमान और यही तालीम है कि रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का इनिशियल एविडेंस, इब्तदाई निशान गैर जुबाने है। वी स्टिल बिलीव इट, लेकिन गैर जुबाने इब्तदाई निशान जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबूत नहीं है। सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ी गवाही ईमानदार की जिंदगी में फल और कसरत से फल और खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता हो। यह रूहुल कुद्स की जिंदगी, भरी हुई जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत है। एक और पॉइंट जो हमने देखा यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में बार बार आया, मुझ में कायम रहो, मैं तुम में कायम रहूं। जो कायम रहेगा वही बहुत फल लाएगा, जो कायम नहीं रहेगा वो बेफल रहेगा। कायम रहना, अबाइड, कलाम की रोशनी में चलना। एक मिसाल पुराने अहदनामे में यूसुफ की जिंदगी, पैदाइश 49 बाब, देखो उसकी जिंदगी का निचोड़ आखिर में
याकूब बासियत बाप प्रोफेटिकली क्या कहता है यूसुफ के बारे में। चैप्टर 49 उसकी 22 आयत, पैदाइश 49 वर्स 22 लिखा हुआ है, यूसुफ एक फलदार पौधा है। अ फ्रूटफुल ट्री इज जोसेफ। ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हो, उसकी ब्लेसिंग्स और लोगों तक भी पहुंच रही है, दीवार पर फैल गई। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा, अरे तीर अंदाज भी थे, उसे बहुत छेड़ा, उसे मारा, उसे सिताया, लेकिन ये फलदार पौधा बनकर कायम रहा खुदावंद में, अपने विजन में, कलाम में, उसकी हुजूरी में। ये तीर शुरू ही से शुरू हो चुके थे, घर ही से। इस पर बहुत बातें की जा सकती हैं। हसद के तीर इस पर लगे, बुक्स के, इल्जामात के, जिनाकारी का इल्जाम झूठा। और क्या जवाब है यूसुफ का कि मैं खुदा की हुजूरी में ऐसी बदी, ऐसा बड़ा गुनाह नहीं करूंगा। और वो भाग गया और वो कायम रहा। मुसीबतें आई, बुक्स आए, हसद आए, कैदें आई, मेहनत आई, बहुत कुछ आया, सताया गया, मारा गया, तीर बरसाए गए, लेकिन कोई चीज यूसुफ को खुदावंद की मर्जी में कायम रहने से ना रोक सकी। वो कायम रहा। दैट इज द चैलेंज। वो कायम रहा। बाज़ औक़ात हम कायम नहीं होते, तासुर देते हैं कि हम कायम हैं। यह शख्स कायम रहा। He paid the price. ये ट्रू डिसाइपल था इन द लैंग्वेज ऑफ न्यू टेस्टमेंट। तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? बाप प्रोफेटिकली कहता है यूसुफ एक फलदार पौधा है। व्हाट अ जॉय! काश हमारा आसमानी बाप हमको देखे और कहे हम में से इनफरादी तौर पर एक एक के लिए ये फलदार पौधा, ये फलदार पौधा, ये फलदार पौधा है। और क्या जिंदगी थी यूसुफ की। शादी हो गई, तख्त मिल गया, पहला बेटा पैदा हुआ, तो नाम क्या रखा? मुनस्सी। इसका मतलब है भूल जाना। इन्हें माजी चुकिया नहीं नाल। He forgot everything, all the past. सारा माजी, तलख माजी, सारे तीर, सारी मारे, सारी कैदें भूल गया और नाम रख दिया बेटे का। जब भी उसको पुकारता, यही गवाही है, यहोवा ने मुझे फलदार किया, मुझे बरकत दी और मैं भूल गया हूं। All माजी cleanly washed, erased. अरे अगर माजी को उठाए फिरेंगे हाल में, मुस्तकबिल में तेजी के साथ नहीं चल सकते। वजन ज्यादा है, तेरी टांगें कमजोर हैं, छोड़ दे माजी को और आगे की तरफ फलदार जिंदगी होगी। मुनस्सी रखिए, अपनी रूह में कहिए, मुनस्सी, खुदावंद ने मेरा सब कुछ मुझे भुला दिया है। और दूसरा बेटा पैदा हुआ, फिर प्रोफेटिक ना, फिर क्या रख दिया? अफ्राइम। इसका क्या मतलब? फ्रूटफुलनेस। खुदा ने मुझे एक परदेसी मुल्क में फलदार किया है। तो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज का एंड टाइम्स का चैलेंज हमारे लिए ये है कि हमारी जिंदगियां फलदार हों। ये फल क्या क्या हैं? नंबर 1, किरदार में फल। यूहन्ना की इंजील 15 बाब भरा पड़ा है इससे। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इन कैरेक्टर,
कैरेक्टर, किरदार, शख्सियत, नेचर, गुफ्तगू, उठना बैठना, फैसले, हलीमी, गलतियों के खात्मे पड़ेंगे, रूह का फल, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी, किरदार जरखेज, मीठा, बाबरकत, इनोसेंट, उसमें कोई हार्म नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई छल नहीं, कोई धोखा नहीं, शफाफ, ट्रांसपेरेंट। ये पेंटिकॉस्टल गवाही होगी दुनिया के अंदर, जब पेंटिकॉस्टल किरदार भी कहेंगे कि रूहुल कुद्स हम में बसा हुआ है। दूसरी किस्म का फल, रूहें जीतने का फल, विनिंग सोल्स फॉर क्राइस्ट, एवेंजलिज्म, फलदार एवेंजलिज्म, बाहर निकलना, रूहें जीतना। चैलेंज है हमारे लिए आज मजमूई तौर पर। हमारे पास पहले एफजीए के अंदर एवेंजलिस्ट की टीम हुआ करती थी, जो पुराने लोग यहां बैठे हैं वो जानते हैं, उसको हम लिटरेचर टीम भी कहते थे। लेकिन वो जाते थे और फल लाते थे और रूहें बचती थी। आज नहीं है। हमारे पास एवेंजलिस्ट हुआ करते थे फुल टाइम, पूरी फेलोशिप में। वो हर साल चर्चेस में जाते और रिफ्रेशमेंट लाते, ताजगी लाते, बिशारती काम करते। चर्चेस के अंदर ताजगी और जिंदगी रहती थी। शायद उस वक्त काम नया था, पहली पुश थी, पास्टर सेटल्ड नहीं थे, उन्हें बाहर से हेल्प की जरूरत थी और महसूस की जाती थी। आज पास्टर्स सेटल्ड हो गए, सेकंड जनरेशन आ गई, हुन मार पाज पै गई। Now we don't feel the need of an evangelist, जिसके पास बुलावा हो, बिशारत का मसा हो, रूहें जीतने वाला हो। आज हम एस्टैब्लिश्ड होना चाहते हैं, लेकिन भूल गए कि बड़ी एस्टैब्लिशमेंट बिशारती काम है, खुदामद में चलना है, रूह में चलना है। जब रूहें जीत रहे होंगे हम सेटल्ड हैं, हम एस्टैब्लिश्ड हैं। और हमने पढ़ा 15 बाब उसकी 16वीं आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर, गो आउट एंड फल लाओ। दिस द एवेंजलिस्टिक वर्क। और तुम्हारा फल कायम रहे, वो शागिर्द भी बने। एक और चैलेंज है हमारे पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए। हम रूहें निजात पा जाएं, आगे आ जाएं तो बहुत खुश होते हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? क्या वो शागिर्दियत में आ गए? क्या वो शागिर्द बन गए? क्या वो बालिग हो गए? क्या वो मसीह में कायम रहे? क्या वो खादिम बन गए? क्या वो गवाह बन गए? उन नए बचे हुए लोगों के साथ हमने क्या किया? इसलिए हमारे चर्चेस में मेंबर्स हैं, शागिर्द नहीं है। पादरी साहब उन्होंने एक गल कहते हैं, दूजी करता है। ना पादरी शागिर्द ना ही मैंबर शागिर्द। वो कोई फैसला करते हैं, वो खिलाफ पार्टी बन जाती, फिर हमें बोर्ड को जाना पड़ता है, रौले पे मुसीबतें पड़ी। वाई? क्योंकि हमारे पास शागिर्द नहीं है। और अब तो यहां तक काम पहुंच रहा है, यह भी नहीं पता होता कि पेंटिकॉस्टल चर्चेस में निजात याफ्ता मेंबर्स कितने हैं। पहली पुश्त में जब हम पूछा करते थे, भाई जी आपके कितने मेंबर हैं, वो कहता हुंदा सी जनाब 59 मेंबर ने। 59, उन्हें 60 भी नहीं कहना। उसको पूरा हुण पूछो, मेरे को 50-60 फैमिलियां है ने। अच्छा, फिर पूछना पैंदा है वो फैमिलियां च निजात याफ्ता किन्ने ने, उन्होंने नहीं पता। हमारा फोकस बदल गया है। पहले चर्चे सिर्फ निजात याफ्ता लोगों के होते थे और जिंदगियां फलदार होती थी। थोड़ी जी को गल उच्ची भी हो जानी ना किसी भाई दे नाल, तो उन्हें कहना यार मेरे को दुआ नहीं होती, मेरे को कलाम नहीं, मेरी रूह बेचैन हो गई है यार।
تے اقرار کرنا جا کے بھائی جی میں تواڈے کولوں معافی مانگنا، یہ روح کی زندگی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، ہون صرف توبہ کروانے ہیں، کرتے نہیں. دس از آل واٹ وی ڈو. آگے چلتے ہیں اور بھی حوالہ جاتے ہیں، لکھ لیجئے فلپیوں 4:1، دانیل 11:3. تیسری قسم کا پھل، حمد و ثنا، پرستش اور ستائش کا پھل. عبرانیوں 13 باب اس کی 15 آیت، وہاں لکھا ہے پس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل، حمد کو پھل کہا گیا، ہونٹوں کا، fruit of our lips، جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں. چوتھا پوائنٹ، پاکیزگی کا پھل. رومیو 6 باب اس کی 22 آیت، وہاں لکھا ہوا ہے مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی. پاکیزگی، اپنا پھل ملا، پاکیزگی کا پھل. Holiness is a fruit of the Holy Spirit. پانچویں بات، دینے کا پھل، fruit of giving. فائنینشلی سورسز، مٹیریل سورسز، دل بھی کھلا، ہاتھ بھی کھلا، یہ بھی ایک ایماندار کی پہچان ہے. فلپیوں 4 باب اس کی 17 آیت لکھا ہوا ہے یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں، پولس رسول کہتا ہے، بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے. وہ خوشبو ہے، انہوں دا ہدیہ سی. اینڈ وہ پولس رسول یہ پھل چاہتا تھا. وہ خوشبو ہے، مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے. فروٹ آف گیونگ. اور جب روح القدس کثرت سے کام کر رہا ہو، ایماندار کا دل خدا کے کام کے لیے کھلا ہوتا ہے. یہ کوئی پرسوں چوتھ کی بات ہے، کوئی بھائی مجھے فون کر رہا تھا، اچھا کنونشن چ آنا ہے تو سانو سہولتاں کی ملن گیاں. یہ پرانا مائنڈ ہے. اب بھائی جی 2015 ہے، آپ 1970 کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یار تیرا چرچ کنا پرانا ہے، تو آج بھی وہی بولی بول رہے ہیں، سانو سہولت، اوے کنونشن نو کی سہولتاں دیو گے؟ گیونگ فروٹ، کھلا دل. اے ہو جائے تو ساڑھے سارے دلدر نہ ختم ہو جان، نہ سانو رپورٹاں لکھنیاں پین، نہ کچھ کرنا پوے، آرام دے نال اسی خدا دا کام جڑا ہے بہتات دے نال کریے. چھٹا پھل، گفتگو کا پھل. امثال 12 باب اس کی 14 آیت، وہاں لکھا ہے آدمی کے کلام کا پھل، فروٹ آف ہز کنورسیشن، اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا. گفتگو کا پھل اگر وہ اچھی ہے، انسان کی روح کو آسودہ کرے گا، اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی جزا اس کو ملے گی. کب؟ جب گفتگو اچھی ہوگی. اور کلام یہ کہتا ہے متی کی انجیل 12 باب اس کی 36 آیت، جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے. اہی پڑھ کے گاہ نکل جانے ہیں تے پھر ہوتے کام ہوتے. یعقوب 3 باب بھی زبان کے استعمال کے بارے میں ہے. اور 7ویں بات ہے روح کا پھل.
गलतियों 5 बाब 22 आयत मशहूर हवाला है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। फलदार ईमान नू की करनगे? पत्थर भी मारनगे तो उन्हें फल ही झाड़ना है, लो खा लो ते निजात पा लो। फलदार शख्स से आप लड़ नहीं सकते। क्या लड़ेंगे? ओनू हिलाओगे वो फल डिगन लग पैणगे, ओनू पत्थर मारोगे वो तुहानू फल देगा। अक के तुम कहोगे नहीं यार छड़ो पर की करना है। फलदार जिंदगी मुबारक जिंदगी है, और ये रूह की जिंदगी है, ये असल पेंटिकास्टल जिंदगी है। हमारे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अच्छी गवाहियां दी दुनिया को, उनकी गैर जुबानें भी बहुत, नेमतें भी बहुत और फल भी बहुत। वो मुबारक पेंटिकास्टल्स हैं, और काश ऐसे ही हों। लेकिन कई ऐसे हैं, हमने जुबान से तो मसीह की गवाही दी, लेकिन किरदार से उसी मसीह की गवाही की नफी की, और लोग ठोकर खा गए। वो कंफ्यूज्ड हो गए कि क्या गैर जुबानें बोलने वाले, रूह का दावा करने वाले, वो भी उनकी जिंदगियों से कुछ नजर नहीं आता। आज चैलेंज है मेरे दोस्तों, मेरे हम खिदमत बहनों भाइयों, कि हम इस चीज का मुताला करें, कलाम की तरफ आएं, रूह से भरें, तौबा करें, फजल के तख्त के सामने आएं। वी हैव अ टाइम, और किरदार को शफाफ और पाक और जिंदा और शादमान। आइए हम शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के सामने आएं